Last time when we meet, or in last lecture, what we discussed was all about transport of carbon dioxide and transport of oxygen through blood, right? Initially we discussed about transport of oxygen, ki how it exactly occurs when oxygen rich air is taken in through lungs into the blood, and how exactly the same thing occurs with carbon dioxide when carbon dioxide rich air is blown into the blood at the level of tissues. If you recall certain important things about that, then you know already that out of the 100% oxygen transported, around 3% of it is transported as a dissolved oxygen in blood plasma, while remaining 97% of the oxygen is transported in association with hemoglobin, or you can say oxyhemoglobin, right? In a similar manner, if you talk about carbon dioxide, then carbon dioxide of a blood at any point of time is transported in three forms. First is as dissolved carbon dioxide, second is as bicarbonate, and third and last form of carbon dioxide transported is as a carbaminohemoglobin. So if you take out the percentage, if you recall, then around 7% is transported as dissolved, around 70% is transported as bicarbonate, and around 23% is transported as carbaminohemoglobin. And in between we also discussed oxygen hemoglobin dissociation curve, and we also mentioned some important things like Bohr's effect, Halden's effect, and Hamburger's effect, and all that, right? Chloride shift, if you recall. All of these things were related with oxygen transport and carbon dioxide transport through blood, right? Now, in this chapter, or you can say we are into the last phase of this chapter, where we need to discuss, as we already know कि हम किसी भी फिजियोलॉजी से जुड़े हुए चैप्टर के एंड में क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस या डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं. तो जहाँ तक बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो हम फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे. To start with, we have three different disorders that are related to respiratory system mentioned and written on the board. Have a look. हमारे पास फिलहाल बोर्ड पे तीन ऐसे डिसीजेस मेंशन है जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं या रेस्पिरेटरी डिसीजेस है या कंडीशंस है. पहला, एज यू कैन सी, ब्रोंकाइटिस. दूसरा, एस्थमा, जो कि एक कॉमन पता होता है ऐसा डिसीज है. और तीसरा है एम्फाइसेमा. इन तीनों में एक कॉमन बात जो तुमको हेडिंग के रूप में दिख रही है कि ऑल थ्री आर respiratory disorders, right? So what is different amongst them, or what are their causes and what exactly occurs in each of them is all written. We will see again one by one. Have a look at this particular disease that is called bronchitis. Okay, नाम में bronchitis है तो पहला दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि it must be related to bronchi. Now you should recall what is bronchi. So bronchi are tubular structures that arise from trachea. हमने एनाटॉमी पढ़ी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. तो ट्रैकिया या विंड पाइप से अराइज होने वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो लंग्स के अंदर एंटर होते हैं, उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई.
फिर उसकी ब्रांचिंग के हिसाब से नाम दिए जाते हैं, लाइक प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन. बट ब्रोंकाई इज बेसिकली व्हाट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट अराइजेस primarily from trachea and functions for carrying oxygen or say air into the lungs and take out CO2 or toxic air from the lungs, right? So if these bronchi gets inflamed, अगर इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का या ब्रोंकाई जिन्हें हम कहते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब उसके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फ्लेमेशन या उस इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाई गेट्स स्वोलन और ब्रोंकाई जो है वो स्वेल हो जाते हैं, जिसे हम स्वेलिंग की जगह एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो यहाँ लिखी भी है. जस्ट हैव अ कंसंट्रेशन ऑन दिस टर्म, हाइपरट्रॉफी. हम इससे पहले भी इस टर्म को किसी ना किसी टॉपिक में मेंशन कर चुके हैं. हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट या किसी पर्टिकुलर जगह में बॉडी में एक्सेसिव ग्रोथ होना सेल्स की, दैट इज व्हाट वी कॉल हाइपरट्रॉफी. सो हियर इन दिस डिसीज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, द बॉडी पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ब्रोंकाई इटसेल्फ, राइट? द ब्रोंकाई गेट्स swollen because of the excessive growth which occurs due to inflammation, and inflammation occurs due to many reasons. अब inflammation का भी कोई रीजन होना चाहिए, तो रीजन कैन बी inhalation of pollutants या फिर सिगरेट स्मोकिंग या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद ब्रोंकाई को इन्फेक्ट करे, which results in hypertrophy of bronchi. Hypertrophy causes swelling of the bronchi, and swelling of the bronchi causes what? Obstruction to the flow of air. Bronchi swell होने की वजह से bronchi के अंदर का जो कैविटी है वो छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से एयर के पासेज को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट? और that's what you are calling obstruction to the flow of air through bronchi is caused due to swelling of the bronchial lining, and swelling occurs due to inflammation or infection because of entry of some kind of pollutant or smoke or even some kind of bacterial infection. अगर ऐसा हुआ तो सिम्टम्स के फॉर्म में हमें क्या दिखता है? तो सिम्टम्स आर लाइक, एक सिम्टम तो कॉमन है जो हमको लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि देयर विल बी लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में अड़चन होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सांस लेने या बाहर निकालने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, एयर अंदर पास करते हैं और अंदर की एयर बाहर निकालते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. तो ये जो एयर के पासेज का रास्ता है ब्रोंकाई वो छोटा हो गया, दैट्स व्हाई देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग. दिस इज अ लॉजिकल सिम्टम, we must know. Apart from that, what can be seen? So because of inflammation, क्योंकि inflammatory reaction होगी, जो कि हम human health and diseases में mention कर चुके हैं already, कि inflammation होने की वजह से there will be production of large amount of mucus, बहुत ज़्यादा मात्रा में mucus तैयार होगा within bronchial tubes, जो और ऐड करेगा प्रॉब्लम्स में और एयर के पासेज को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. एंड कफिंग, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन देयर विल बी कफिंग, कफ आएगा जिसको हम ठसा बोलते हैं, वो होगा, राइट? तो ये सारी चीजें होंगी ब्रोंकाइटिस में, जिसको हम इन जनरल कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन विद इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है ये भी हम इसी चैप्टर के शुरुआत में मेंशन कर चुके हैं. फिर से एक बार अगर तुमको समझना है तो फेरिंक्स के नीचे के पूरे हिस्से को हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, फेरिंक्स के नीचे, और ब्रोंकाई नो डाउट फेरिंक्स के नीचे है, राइट? अब ब्रोंकाइटिस के बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर अगर हम देखें तो इट इज अस्थमा.
अस्थमा एक कॉमनली नोन डिसऑर्डर है और अस्थमा की वजह ब्रोंकाइटिस से अलग है, ये हमको पहले समझना होगा। देखो दोनों में कंपैरिजन करो। पहले ब्रोंकाइटिस की वजह क्या थी? हाइपरट्रॉफी, दैट इज एक्सेसिव स्वेलिंग इन द ब्रोंकियल लाइनिंग ड्यू टू सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, राइट। जहां बात आती है अस्थमा की, तो अस्थमा एक कंडीशन है, डिसऑर्डर से ज्यादा एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? एलर्जिक कंडीशन। अब एलर्जिक कंडीशन क्यों होती है किसी पर्सन में? मैं तुमको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स में भी समझा चुका हूं कि एलर्जन मतलब एलर्जन हम ऐसे किसी केमिकल या ऐसे किसी कंपाउंड को एलर्जन कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्या प्रोड्यूस करे? एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बहुत कॉमन चीज तुमने देखी होगी कि कुछ लोगों को डस्ट सहन नहीं होती, या वो जैसे ही डस्ट में जाते हैं या डस्ट वाली जगहों पे जाते हैं, उन्हें छींक आना, स्नीजिंग शुरू हो जाती है, उन्हें सिर दर्द देना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने में कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं खा पाते, या हमने लोगों को कॉमनली बोलते हुए सुना होगा कि नहीं मुझे इस चीज से एलर्जी है। तो एलर्जी जिस भी चीज से होती है ना किसी पर्सन या किसी इंडिविजुअल को, उस पर्टिकुलर चीज को हम एलर्जन कहते हैं। और वो चीज खाने से इंसान बीमार नहीं होता, उसमें कुछ रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, राइट। वो एलर्जिक रिएक्शन रैशेस के फॉर्म में हो सकती है, वो एलर्जिक रिएक्शंस किसी तरह के रेडनेस के फॉर्म में हो सकती है, इरिटेशन के फॉर्म में हो सकती है, स्नीजिंग कफिंग के फॉर्म में हो सकती है, शॉर्टनेस इन ब्रीथ के फॉर्म में हो सकती है, फीवर के फॉर्म में हो सकती है, राइट। तो कहने का तात्पर्य ये है या कहने का मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं, एस्थमा ये एक डिसऑर्डर कम है और कंडीशन ज्यादा। कैसी कंडीशन? एलर्जिक कंडीशन, ठीक है। और क्यों होती है ज्यादातर लोगों में ये एलर्जिक कंडीशन? तो बिकॉज ऑफ द इनहेलेशन, सांस के द्वारा ऐसी कोई चीज उनकी बॉडी में जाना जो उनके लिए एलर्जिक है। अब मैं ये भी बता दूं कि सारे लोग, सब जन एक ही चीज से एलर्जिक नहीं होते। ओके, इट्स अ डिफरेंट साइंस कि व्हाई वन पर्सन इज एलर्जिक टू समथिंग एंड व्हाई अदर इज नॉट, बट इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इफ अ पर्सन ABC is allergic to dust, or what if a person XYZ is allergic to some smoke, like say cigarette smoke or say some kind of toxic gas। तो ऐसा सिगरेट स्मोक, डस्ट या टॉक्सिक गैस के कांटेक्ट में आने से या उसे इनहेल करने से ऐसे पर्सन में कुछ कंडीशंस या कुछ रिएक्शंस डेवलप होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? अस्थमा। तो अस्थमा तरह इस टाइप की एलर्जिक रिएक्शन में पर्टिकुलरली क्या होता है? तो whenever allergen enters, now when I say allergen, I am not specifying something. Allergen can be smoke, allergen can be dust, allergen can be some kind of smell, chemical, right? So whenever allergen enters, it causes release of certain chemicals like histamine. Now if you try to recall a cell or WBC that produces histamine. Yes, if you can recall. And if you have recalled it's a mast cell, then you are right. Mast cell या बेसोफिल वो WBC है जो एलर्जन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद क्या सिक्रीट करती है? हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन इंटर आगे जाके क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इट्स अ वैसो, मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, छोटी करता है। और साथ ही में और क्या करता है? अगर कंडीशन अस्थमैटिक हो तो दिस इंटर रिजल्ट्स इन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। देखो बेसिक फर्क कहां है? हियर देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल लाइनिंग, राइट? हियर देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। रिजल्टेंट इफेक्ट यहां पे भी
वही होगा कि ब्रोंकाई का जो पासेज है वो ब्रोंकाई के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से छोटा हो जाएगा, and because of the narrowness that arises in the bronchial lining or bronchial tube due to constriction, what will be the result? The result will be, again, there will be obstruction for the flow of air. As there is an obstruction for the flow of air, there will be shortness in breath, or say you can say breathing process में, मतलब inhalation और exhalation करने में प्रॉब्लम फील होगी। मतलब सीधी भाषा में कहे तो पर्सन ठीक से सांस नहीं ले पाएगा, और जब वो सांस लेगा तो क्योंकि पासेज छोटा हो गया है, whenever a person with asthmatic condition breathes, okay, there will be a production of certain sound of whistling, that's called wheezing sound is produced during breathing. There will be problematic breathing and common symptoms like coughing. If not taken care of, then it can also lead to death. Okay, so commonly जिन्हें अस्थमा की शिकायत होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, वो लोग कोशिश ये करते हैं कि वो ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स या गैस या स्मोक ज़्यादा हो, या हम कहें सफोकेशन हो। और गलती से अगर कहीं अस्थमेटिक अटैक आ भी जाए, मतलब गलती से अगर ऐसे लोग इन चीज़ों के एलर्जेंस के कांटेक्ट में आ भी जाए, तो उनके पास एक डिवाइस होता है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट डिवाइस बिकॉज इट इज शोन इन मेनी फिल्म्स एंड ऑल। उसे क्या कहते हैं? इनहेलर कहते हैं, राइट? वो क्या होता है? एक तरह का स्प्रे होता है जिसमें ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के बाद हिस्टामाइन के इफेक्ट को खत्म करते हैं, मतलब डायलेशन करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकाई को फिर से नॉर्मल बनाते हैं, तो वो पर्सन फिर से ठीक से सांस ले पाता है। तो वो तुरंत इफेक्ट करने वाला जो डिवाइस है वो उनके पास होता है। फिल्मों में दबंग फिल्म देखी होगी तो वो जो फुसफुस वाला डिवाइस वो वही है, ठीक है ना? तो वो बहुत ज़रूरी डिवाइस होता है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें अस्थमा है और वो उनको पता नहीं है क्योंकि कम लेवल पे ये प्रॉब्लम है, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन इन कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज वी आर अ टॉप पोल्यूटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, बट दिस विल नॉट बी आस्क्ड बाय एनी मींस। व्हाट विल बी आस्क्ड इज कि अस्थमा इज एन एलर्जिक कंडीशन, व्हाट केमिकल इज रिलीज्ड इज histamine. Symptoms are given for the reference. Okay, now third type of disease is emphysema. Emphysema इस शब्द का ही मतलब होता है, जैसे कि लिखा है, full of air. Emphysema as a term itself means full of air. अब थोड़ी सी कहानी जो हम पहले भी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या कहा है हमने आज तक कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो वी टेक इन फ्रेश एयर एंड वी गिव आउट फाउल एयर, राइट? द अमाउंट ऑफ एयर वी टेक इन एंड द अमाउंट ऑफ एयर वी गिव आउट थ्रू नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑलमोस्ट सेम, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है जहाँ तक मुझे लगता है। एक पूरा लेक्चर हमने वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को डेडिकेट किया है। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो नॉर्मली हम इंस्पायरेशन से लेते हैं और एक्सपायरेशन से बाहर निकालते हैं, करेक्ट? तो क्या हो अगर हम सांस अंदर ठीक से लें लेकिन उसे बाहर ना निकाल पाए, मतलब जो एक्सपायरेशन है वो प्रॉपरली ना कर पाए, तो तब लंग्स के अंदर एयर लटकी रहेगी, राइट? या लंग्स के अंदर से एयर जितनी बाहर निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकल पाएगी। तो इसी कंडीशन को कहते हैं एम्फाइसेमा। Why emphysema is a condition that is typically called full of air? Because here a person's lungs loses their flexibility. lungs की जो elasticity है या लंग्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लूज हो जाती है या गायब हो जाती है, जिसकी वजह से
एक्सपायरेशन करने के बाद भी, मतलब सांस को बाहर निकालने के बाद भी हवा जो जितनी बाहर निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकल पाती और लंग्स के अंदर हवा फंसी रहती है या प्रेजेंट रह जाती है। दिस पर्टिकुलर कंडीशन वेयर लंग्स रिमेन फिल्ड विथ एयर even after expiration because of the lack of elasticity or flexibility in lungs is called as emphysema. Now the same thing is written here. Here lungs remain filled with air even after expiration, which is particularly due to loss of flexibility or loss of elasticity of lungs, as elastic tissue is replaced by fibrous tissue. Give a emphasis on this particular line. Elastic tissue is replaced by fibrous tissue. और ये इसका मुख्य कारण जो है दुनिया भर में लोगों में एम्फाइसेमा होने का जो मेन रीजन है वो है कंटिन्यूअस स्मोकिंग। फिर चाहे वो बीड़ी की हो, सिगरेट की हो, फिल्टर वाले सिगरेट की हो या और किसी तरह के सिगरेट की हो, गांजा की हो या वो हुक्का होता है उसकी हो, किसी भी तरह का स्मोक जो इनहेल किया जाता है और जो तंबाकू जैसे पदार्थ से निकला हुआ स्मोक है उसको कंटिन्यूअसली करने से एम्फाइसेमा होता है। और ऐसे पर्सन जिनमें एम्फाइसेमा हुआ है उनका जो ये वाला हिस्सा है वो ऐसा ऊपर आया हुआ होता है नॉर्मल से ज़्यादा। इसका रीज़न है जो लंग्स के सरफेस में प्रेजेंट इलास्टिक टिश्यू है जो लंग्स को फ्लेक्सिबल बनाए रखता है, जिसकी वजह से हम सांस अंदर ले पाते हैं और बाहर निकाल पाते हैं, दैट इज इंस्पायरेशन कर पाते हैं और एक्सपायरेशन कर पाते हैं, तो वो नहीं हो पाता। ओके, मतलब जो पहले भी जैसे बोला कि जो एयर बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म एम्फाइसेमा, फुल ऑफ एयर। स्मोकिंग इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड एम्फाइसेमा। और सबसे दुख की बात यह है या सबसे खराब बात यह है कि तुम एंटीबायोटिक्स या किसी भी तरह की दवाई स्प्रे यूज करके इस कंडीशन को रिवर्ट नहीं कर सकते। मीन्स इट इज एन इनक्यूरेबल थिंग। इफ द इलास्टिक टिश्यू ऑफ द लंग्स once replaced by fibrous tissue, it will not again convert into elastic tissue by any means. It's an irreversible condition. Is it okay? And breathing efficiency of such person will be lost forever. This is a very bad thing about it. Now, हमने डिसऑर्डर्स में इन तीनों को एक साथ क्यों लिखा या एक साथ क्यों पढ़ा, इसका एक रीजन है। इसलिए ये तीनों एक साथ आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं और एक साथ हमने इनको पढ़ा। थोड़ा सा एक कॉमन लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो। अभी तक के जो 3 डिसऑर्डर्स हमने देखे हैं और उसके लिए आप 2 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए इन तीनों चीजों को देखो बिफोर आई रिमूव देम। व्हाट यू फील? हाँ, कुछ सिमिलैरिटी हमको दिखती है क्या इसमें? तो एक सिमिलैरिटी है जो बतानी थी, इसीलिए इन तीनों को हमने एक साथ लिखा और पढ़ा। कौन से तीनों को? तो फिर से मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। हमने 3 डिसऑर्डर्स जो पढ़े उसमें से पहला था ब्रोंकाइटिस, दूसरा वो अभी भी है लिखा हुआ एस्थमा, और तीसरा भी है दैट इज एम्फाइसेमा। इन तीनों में कॉमन बात यह है कि देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर विच प्रोसेस? ब्रीदिंग प्रोसेस। ओके, इन तीनों ही डिसऑर्डर्स में एक कॉमन चीज क्या है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन मटेरियल है और इतना इंपॉर्टेंट कि इन तीनों डिसऑर्डर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टर्म का है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। और कौन से 3 डिसऑर्डर्स के लिए बोलने जा रहा हूं? ब्रोंकाइटिस, एस्थमा एंड एम्फाइसेमा। इन तीनों डिसऑर्डर्स को
जोड़ के एक कॉमन टर्म यूज की जाती है, इट इज कॉल्ड COPD। ओके, ये एब्रिविएशन है फॉर समथिंग, वो हम देखते हैं यहाँ पे। अभी बात क्या हो रही है उसको पहले समझो। इन 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या कंडीशन को मिलके क्या कहा जाता है? COPD, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी disorders. It stands for COPD. Okay, chronic obstructive pulmonary disorders. तो फिर सवाल अगर आया कि which of the following disorder is not a COPD और which of the following disorder is COPD, तो ये 2 कैटेगरी के सवाल इसी एक टर्म के बेसिस पे बनते हैं। COPD is chronic obstructive pulmonary, मतलब लंग्स से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब एयर के फ्लो को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, क्रॉनिक मतलब जो कई दिनों में डेवलप होता है। देखो 2 कैटेगरी के डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे सिस्टम कोई भी हो। एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो रिसेंट रीजन की वजह से हुआ है, रिसेंट इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, और जो कई दिनों से धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? क्रॉनिक। तो ये तीनों डिसऑर्डर एक दिन में नहीं होते, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान में डेवलप होते हैं। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर क्रॉनिक, ऑल ऑफ देम causes problems in breathing, so obstructive, all of them are related to lungs, so pulmonary disorder is disorder. So COPD, chronic obstructive pulmonary disorders. Okay, look at this for a while. Till now we discussed 3 important respiratory disorders, okay, that is emphysema, bronchitis and asthma, and one common term at the last we used for all 3 of them was COPD, that is chronic obstructive pulmonary disorders, as all 3 disorders show one common symptom, that is obstruction for breathing. Okay, so this is a very important thing, you need to remember it, particularly COPD, that is chronic obstructive pulmonary disorders, and which 3 conditions or diseases comes under it. The next disorder is very familiar to you. I am not saying this because you are already familiar with that, but I am saying this because we discussed this before recently in a chapter, human health and diseases, that is pneumonia. Okay, so try to recall. Okay, यहाँ पे इधर जाके पढ़ने से बेटर हम खुद ही रिकॉल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि निमोनिया, इस डिसीज को जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? क्या था निमोनिया? निमोनिया एक ऐसी कंडीशन का नाम है, या निमोनिया एक ऐसे डिसऑर्डर का नाम है जहाँ पे लंग्स के अंदर एयर की जगह फ्लूइड फील्ड हो जाता है, हम या कहे वाटर ये टर्म ठीक नहीं होगी, तो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म फ्लूइड। तो जनरल थिंग और सिंपल थिंग टू एक्सप्लेन निमोनिया इज व्हाट? द प्लेस और एरिया वेयर देयर शुड बी एयर gets replaced with fluid, or you can say air sacs or alveolar sacs which should be filled with air, now filled with fluid, right? And this condition is typically called pneumonia because of the presence of fluid instead of air. There will be obstruction for the exchange of gases or say external respiration. पढ़ चुके हैं हम। तो निमोनिया में एयर सैक्स या अल्वेओलर सैक्स में फ्लूइड भर जाने की वजह से जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब लंग्स के लेवल पे होने वाला गैसियस एक्सचेंज है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। अब रहा सवाल कि किस वजह से निमोनिया होता है, तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि निमोनिया होने का कोई एक पर्टिकुलर रीजन टेक्निकली नहीं है। हाँ,
ये जरूर कहा जा सकता है कि निमोनिया अगर किसी पर्सन में हुआ तो उस पर्सन में निमोनिया किस वजह से हुआ, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक ही वजह है जिससे निमोनिया होता है। दैट्स व्हाई वी सेड अर्लियर आल्सो कि डिपेंडिंग अपॉन द रीजन बिहाइंड निमोनिया वी कॉल इट बैक्टीरियल निमोनिया और फंगल निमोनिया और वायरल निमोनिया और जनरल निमोनिया, because as you can see again here कि pneumonia is caused due to various reasons like bacterial, fungal, viral infection or even entry of some kind of allergen, dust particle etc. Okay, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा कॉमन जो रीज़न है लोगों में निमोनिया होने का वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है वो हम ये पहले से जानते हैं, फिर से एक बार देख लो। व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया इन ह्यूमंस? प्रीवियसली इस बैक्टीरिया को कहा जाता था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, लेकिन अब इसे कहा जाता है डिप्लोकोकस निमोनिया। इज इट ओके? Initially the same bacteria was called Streptococcus pneumoniae, but because research has told us that this bacteria is not Streptococci but it's a Diplococci, so we are now calling it Diplococcus pneumoniae. Is it okay? Not like emphysema कि ये disease ठीक नहीं हो सकता. It's a curable disease. Common antibiotics can give us relief from pneumonia. Is it okay? Then another category of respiratory disorder is called occupational respiratory disorders, or in short they are called ORDs. That's what occupational respiratory disorders. नाम से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। वैसे तो occupation मतलब पर्सन का काम, तो उसके काम की वजह से अगर किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, मतलब उसका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि उस नेचर ऑफ वर्क की वजह से उसे रेस्पिरेटरी कंडीशन या रेस्पिरेटरी डिसीज प्रोड्यूस होता है, तो उसे ORD कहते हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे अगर कोई मजदूर है जो गिट्टी के खदान में काम कर रहा है, गिट्टी समझते पत्थर के तोड़ने वाली जगह पे या पत्थर निकालने वाली जगह पे काम कर रहा है, जहाँ पत्थर का काम हो रहा है बेसिकली ऐसी जगह, तो वहाँ कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मात्रा में सिलिका रिच धूल उड़ती है। ठीक, तो ऐसी सिलिका से भरी हुई जो धूल है वो कंटिन्यूसली फेफड़ों में, लंग्स में वहाँ के लोगों के जाती है, चाहे कितना भी मास्क यूज करे और कितना भी कुछ यूज करे। ठीक है ना? तो उस पर्सन को या ऐसे लोगों को सिलिकोसिस होने का खतरा बना हुआ रहता है। तो किसी पर्सन में सिलिकोसिस हुआ मतलब लंग्स में सिलिका कंटिन्यूसली एंटर होने की वजह से लंग्स इन्फ्लेम्ड हो गए बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एंट्री ऑफ सिलिका रिच डस्ट, तो उस कंडीशन को कहते हैं सिलिकोसिस। और सिलिकोसिस उस पर्सन में होने का रीजन क्या है? उसका काम। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सिलिकोसिस की ही जैसा दूसरा एक कॉमन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है asbestosis. Asbestos is a very toxic thing, and if it accumulate in lungs, the similar effect will be seen as like that of silicosis, right? तो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस इन दो कंडीशंस को हमको पर्टिकुलरली याद रखना है अंडर द हेडिंग ORDs, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो जहां तक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात है, ये 4 या 5 जो हमने अभी तक देखे पढ़े वो इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, लेकिन फिर भी कुछ एडिशनल रेस्पिरेटरी डिसीजेस या ऐसे डिसीजेस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं वो यहाँ हमने मेंशन किए हैं। हैव अ लुक। इसीलिए यहाँ लिखा है अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ट्यूबरकुलोसिस जिसको शॉर्ट में हम टीबी कहते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है मतलब रीजन बिहाइंड टीबी इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये एक तरह का नाम से भी समझ में आता है बैक्टीरिया है। उसके बाद सर्दी, कोराइजा मतलब हमारी कॉमन जो हमको देर सवेर होते रहती है वो है कॉमन कोल्ड, मतलब सर्दी मतलब कोराइजा।
इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है या किसका हाथ होता है? तो राइनो वायरस, इसको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद जो हमको कॉमन बुखार आता है, वायरल फीवर, डॉक्टर बहुत अच्छे से बोलता है, तो वायरल हो गया आपको या वायरल फीवर हो गया, तो इट इज टेक्निकली कॉल्ड इन्फ्लुएंजा, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। H1N1 नाम सुना होगा, ठीक है। चिकनगुनिया हो गया तुम्हारा, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। तो ये जो फ्लू सुनते हैं ना, ये फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा, मतलब इसी वायरस के अलग अलग प्रकार, जिसकी वजह से ह्यूमन में हर सीजन में कुछ लोग इन्फेक्ट होते रहते हैं, उनको छोटा मोटा बुखार, जिसको वायरल फीवर हम आजकल बोलते हैं, वो होता रहता है। दैट इज व्हाट अगेन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि वायरस की एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती है, एयर के थ्रू। ये सब एयरबॉर्न है। उसके बाद रहा ये थोड़ा सा आजकल ट्रेंडिंग में है, सार्स। इसका पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी चाइना की ही देन है, जिसको चाइना ने ही पूरी दुनिया में फैलाया था, इन द सेंस चाइना से ही फैला था 2003 में, ठीक। और आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, पता है इसका मतलब आप न्यूज़ देखते हो या करंट नॉलेज अच्छी है। नहीं पता तो जान लो कि ये जो आजकल हम सुनते हैं कोविड-19 मतलब कोरोना, ये इसी वायरस का एक बदला हुआ रूप है। सार्स कोरोना वायरस उसका पूरा नाम है, जिसको अभी अभी नामकरण दिया गया कोविड-19। एक्चुअली उसका पूरा नाम है सार्स कोरोना वायरस, ठीक है। इसीलिए मैं तुमको इसी चैप्टर में पहले भी शायद कहीं बोल चुका हूँ कि कोरोना वायरस इज नॉट न्यू टू द वर्ल्ड, but the coronavirus that is causing havoc nowadays, it's a modified form of that virus. Now दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं कि वो नेचुरल है या किसी लैब से निकला है, वैसा है, वो हमको तो नहीं पता, बट ये जरूर समझ लो कि कोरोना वायरस इज नॉट अ न्यू वायरस टू द वर्ल्ड, इट्स अ ओल्ड वायरस, बट the viral strain that is causing corona in people nowadays, it's a modified strain or developed type of that virus. उसका पूरा नाम है SARS कोरोना वायरस, ओके। SARS कोरोना वायरस उसका पूरा नाम है। SARS मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब इन्फेक्शन के तुरंत बाद ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वायरस, और सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज SARS, SARS, ओके। सो ये सारे डिसऑर्डर्स जो इस लेक्चर में हमने पूरी तरह से डिस्कस किए, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इनके कॉजेटिव एजेंट्स या हम कहें रीजंस बिहाइंड पता होने चाहिए, और कुछ COPD जैसी चीज़ें जो तुमने बहुत संभाल के और पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके दिमाग में रखनी चाहिए, ओके। दैट्स ऑल विद डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड विद दिस वी आर डन with a chapter named breathing and respiration, okay. After we done with this lecture series, or after you have done with watching all the lectures, what you need to do is go through the videos again or go through the whole chapter again, and it's your duty to ask anything related to the query or any related query to this chapter on group or whatever ways provided to you like Google Classroom, okay. Whenever I मुझे जब भी दिखेगी आपकी क्वेरी या प्रॉब्लम, सो आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेरी इफ यू हैव एनी, ओके। सो दैट्स इट विद द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। थैंक यू।